تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آپریشن سندور کے تناظر میں کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ہندوستانی فوج کے ذریعے کیے گئے آپریشن سندور کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چہارشنبے کو کمانڈ کنٹرول سینٹر میں فوج، پولیس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک ہنگامی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی سروسز فراہم کرنے والے محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا اسنا پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے غیر مجاز طور پر رہنے والوں کو فوری طور پر حراست میں لینے کو کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ملازمین اور وزراء کو دستیاب رہنے کی ہدایت دی ہے، غیر ملکی دوروں کو منسوخ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر غیر ضروری بیانات دیے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، عہدیداروں کو ضروری ادویات اور خوراک کا مناسب اسٹاک ذخیرہ کرنے اور بلڈ بینکوں میں خون کے ذخائر تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خانگی اسپتالوں میں بستروں کی دستیابی کے بارے میں وقتاً فوقتاً معلومات حاصل کرنے اور ریڈ کراس کو تعاون کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک ٹول فری نمبر بھی دستیاب کرانے کو کہا گیا ہے جو کہ 24 گھنٹے عوام کے لیے دستیاب رہے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جعلی خبروں سے لوگوں میں مزید بے چینی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے تجویز کی ہے کہ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ساتھ حساس علاقوں میں چوکس رہنے، سیکیورٹی میں اضافہ کرنے اور امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حیدرآباد میں 3 کمشنریٹس حدود میں کمانڈ کنٹرول روم سے CCTV کیمرے بھی منسلک کرنے کو کہا گیا ہے۔ حیدرآباد میں تمام غیر ملکی سفارت خانوں اور IT اداروں میں بھی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ حیدرآباد شہر میں پولیس کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے بنڈاگوڑا منڈل کے کندیکل گاؤں میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے بنڈاگوڑا منڈل کے کندیکل گاؤں میں 2500 مربع گز سرکاری اراضی پر کیے گئے قبضے جات کو برخاست کر دیا۔ سروے نمبر 303 اور 306 کے تحت اراضی کی پہلے ہی اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ کے تحت درجہ بندی کی جا چکی تھی۔ حکام نے پایا کہ سید بشیر الدین اور سید امین اللہ حسین نے غیر قانونی طور پر اس اراضی پر RCC کی عمارتیں، شیڈز اور کچھ دکانات تعمیر کی تھی۔ عوامی شکایت کے پلیٹ فارم پرجاوانی کے ذریعے شکایتیں موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کے عہدیداروں نے وہاں کا معائنہ کیا اور سرکاری ریکارڈز کی بھی جانچ کی گئی۔ ٹیم نے 4 مستقل RCC ڈھانچے، متعدد 3 شیڈز اور 4 دکانات کو مسمار کر دیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند نے کہا کہ مرکزی حکومت کے آپریشن ابھیاس کے تحت حیدرآباد میں بھی تمثیلی مشق کا اہتمام کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ملک کی سطح پر 244 اضلاع میں تمثیلی مشق کی جائے گی، جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر CV آنند نے کہا کہ حیدرآباد میں شام 4 بجے جنگی سائرن بجیں گے۔ تقریباً 50 سال بعد جنگی سائرن بجنے والے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے سائرن بجایا جائے گا۔ CV آنند نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ سائرن بجتے ہی محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ایک تمثیلی مشق کے حصے کے طور پر سائرن بجائے جائیں گے۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے گنگا نگر نالے کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج نے رین بازار ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے گنگا نگر نالے کے جاری کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رین بازار ڈویژن کارپوریٹر واسع الدین، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ حیدرآباد باوقار 72ویں مس ورلڈ مقابلے کی میزبانی کے لیے تیار۔ حکومت کے عہدیداروں نے مقابلے کے شرکاء کا راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شہر حیدرآباد میں مختلف ممالک کی حسیناؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد باوقار 72ویں مس ورلڈ مقابلے کی میزبانی کے لیے مکمل طور سے تیار ہے۔
हुकूमत के अहदेदारों ने मुकाबले के शुरा का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि अब तक 51 शुरा और 23 एहलकार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि पहलगाम हमले से 3 दिन कबल जब इंटेलिजेंस ने उन्हें रिपोर्ट भेज दी थी तो फिर दहशतगर्दाना हमले की इतला मिलने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों तैनात नहीं की गई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के रांची में जल से आम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पूछा कि दहशतगर्दाना हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी पहलगाम में सिक्योरिटी तैनात क्यों नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के 3 दिन कबल ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को भेज दी थी। ऐसी सूरत में क्या मरकजी हुकूमत को पहलगाम हमले में हुए जानो माल के नुकसान के लिए जवाबदार नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब इंटेलिजेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए कहती है कि वहां आपका जाना मुनासिब नहीं है, तो वही बात अपने इंटेलिजेंस के एहलकारों, सिक्योरिटी, पुलिस और बॉर्डर फोर्स को क्यों नहीं बताई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो ये पूछते हैं कि जब मोदी ने अपना प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, लेकिन जो सैयाह वहां ज्यादा तादाद में गए थे, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी तैनात क्यों नहीं की गई। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि जब हुकूमत अपनी गलती मान रही है तो फिर इतने लोग जो हादसे में मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हुकूमत को ही लेनी चाहिए। बीआरएस एमएलसी के कविता ने हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया। बीआरएस एमएलसी की कविता ने चारशंबे को हिंदुस्तानी फौज को ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया और जो लोग हमला करने के लिए गए थे वो बाहिफाजत वापस आ गए हैं। ये कविता ने एक कौम की हैसियत से सबको मुत्तहद होने और सियासी नजरिए से बालातर होने पर भी जोर दिया। सीपीआई के रहनुमा के नारायणा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तानी अवाम पर हमले की मजम्मत की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज ने मंगल की रात पाकिस्तान पर फिजाई हमले किए और दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया गया। सीपीआई के रहनुमा के नारायणा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तान के अवाम पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के मुखालिफ हैं। उनका दावा है कि हिंदुस्तानी फौज को दहशतगर्दों को मारने की तरबियत दी गई है, न कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की। उन्होंने दहशतगर्दों को मारना एक मुनासिब इक़दाम करार देते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जोर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हिंदुस्तान के साथ ताउन करे। सीपीआई के सीनियर कायद के नारायणा ने कहा कि लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ऐसा करने से दहशतगर्दी को मजीद तक़वियत मिलेगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर के लोगों को मुल्क के सरहदी मामलात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने एक वीडियो जारी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के लोगों को सरहदी हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना की हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हर तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने आवाम से ये गुजारिश भी की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला करीबी पुलिस स्टेशन को दें। पूनम प्रभाकर ने बताया कि दोपहर 4 बजे सिकंदराबाद कंटोनमेंट, कंचनबाग और नाना नगर में तमसीली मशक का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत हैदराबाद में कंटोनमेंट के इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पार्टी दोनों की जानिब से हुकूमत हिंद की जानिब से उठाए गए हर कदम की हिमायत की जा रही है
और कांग्रेस पार्टी ने एक करारदाद भी पास की है कि मरकजी हुकूमत को दाखिली सलामती के हवाले से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद और कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ वक्तन फ़ौक्तन सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हैदराबाद के लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। गुलशमेल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई की सताइश की। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गुलशमेल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजा सिंह ने कहा कि ये वक्त सियासत पर बात करने का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फौज के अजीम काम के बारे में बात करने का है। उनका कहना था कि अभी तक किसी भी मुल्क ने ये इक़दाम नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह कर दिखाया। राजा सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि ये तो महज शुरुआत है और वो वज़ीर आज़म पर जोर देते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के चंद घंटों बाद मरकजी काबीना के इजलास की सदारत की। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के चंद घंटों बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना के इजलास की सदारत की। इस दौरान मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने काबीना के दीगर अरकान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम देने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की सताइश की। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के नाम से फर्जी मशक की गई। आवाम को हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के चलते मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन अभ्यास की हिदायत जारी की थी। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद में पुलिस महकमे की निगरानी में ऑपरेशन अभ्यास के नाम से फर्जी मशक की गई। ये मशक चारशंबे की शाम 4 बजे शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंज उठे। सायरन अहम चौराहों और अपार्टमेंट्स के करीब सुनाई दिए। आपको बता दें कि ये मशक हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ेकार से अवाम को आगाह करने के मकसद से की गई थी। पुलिस की जानिब से अवाम और इमदादी अमले को ऐसे हालात में बर्ताव के तरीक़े सिखाने के लिए इस मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया था। हैदराबाद के 4 इलाकों नारायण नगर, कंचनबाग, सिकंदराबाद और ECIL NFC में तमसीली मशक की गई। इस मशक में NDRF, SDRF, महकमे दिफा और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि कमांड कंट्रोल सेंटर से आला हुकाम ने इस मशक की निगरानी की। सिकंदराबाद, गोलकुंडा, कंचनबाग, DRDO और मौला अली NFC में भी अफसरान ने तमसीली मशक की क़यादत की। फ़िज़ाई फर्जी हमले की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस पर ऑपरेशन अभ्यास के तहत सिविल डिफेंस सर्विसेज के 12 अफसरान ने अवाम में आगाही पैदा की। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद के अलावा मुल्क के कई मुकामात पर भी तमसीली मशक की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत हिंदुस्तान की सरहदी रियासतों के वज़राए आला और आला हुकाम का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर ख़ौज़ किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदुस्तान की सरहदी रियासतों के वज़राए आला, डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के एक अहम इजलास की सदारत की। ये इजलास ऐसे वक्त में तलब किया गया जब हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों पर फ़िज़ाई कार्रवाई की। इजलास में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मगरबी बंगाल के वज़राए आला समेत लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद हिंदुस्तानी सरहदी रियासतों में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेना, किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना और मरकजी व रियासती एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाना है। बताया जाता है कि इजलास में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा होने वाली इलाकाई कशीदगी
सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खतरात और पाकिस्तान की जानिब से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत फौजी कार्रवाई में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह हो गए, 80 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हिंदुस्तान ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें तहस नहस कर दिया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की क़यादत कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर रही थी और दोनों ने 25 मिनट के दौरान कल अदम, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों की पनाहगाहों को निशाना बनाते हुए 80 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौजी कार्रवाई में उन तंजीमों के कुछ बड़े एहलकार को भी निशाना बनाए जाने की इतलात मिली है। बताया जाता है कि ठिकानों पर 26 मिसाइल दागे गए और ये कोशिश रही कि शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमलों से दहशतगर्दों की कमर टूट गई है और उनमें उस सलाहियत नहीं रही कि वो कोई दहशतगर्द सरगर्मी अंजाम दे सकें। हुकूमत ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के किसी भी फौजी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ये कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहलगाम हमले को जिस तरह से दहशतगर्दों ने अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की अशद जरूरत थी। ओबलापुरम कानकनी केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि बीआरएस लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी बरी कर दी गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नामपली की खुसूसी अदालत ने ओबलापुरम कानकनी केस में तकरीबन 14 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें 4 अफराद मुजरिमीन करार दिए गए हैं और 2 अफराद को बरी कर दिया गया है, जिनमें साबिक वजीर कानकनी पी सबिता इंदिरा रेड्डी भी शामिल हैं। अलावांजी उस वक्त के सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज कृपानंद भी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने 4 मुलजिमीन साबिक वजीर व मौजूदा रुकन असम्बली कर्नाटक जी जनार्दन रेड्डी, उनके ब्रदर निस्बती और मैनेजिंग डायरेक्टर ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन श्रीनिवास रेड्डी और वीडी राजगोपाल और महफूज अली खान को सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुजरिमीन पर फीकस 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। कंपनी पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। फैसले के बाद सीबीआई ने साबिक वजीर जनार्दन रेड्डी और दूसरों को तहवील में ले लिया। आपको बता दें कि तहकीकात के दौरान लिंगा रेड्डी नामी मुलजिम की मौत हो गई थी, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने साल 2022 में ही इसी केस की एक मुलजिमा श्री लक्ष्मी को डिस्चार्ज कर दिया था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा शादी मुबारक स्कीम के 148 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दारुसलाम में शादी मुबारक स्कीम के 148 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,48,17,168 रुपये रही। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। साबिक वजीर हरीश राव ने धान खरीदारी मरकज का दौरा करने के बाद ओहदेदारों को धान का मुआयना करने और फौरी तौर पर धान खरीदने की हिदायत जारी की है। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सिद्दीपेट मंडल के अरकोट गांव में वाक़े आईकेपी सेंटर का दौरा करते हुए बारिश से गीले होने वाले अनाज का मुआयना किया। उन्होंने परेशान किसानों का साथ देने की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां साबिक वजीर ने ओहदेदारों को आईपीके सेंटर का दौरा करने और गीले धान का मुआयना करते हुए फौरी तौर पर धान खरीदने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि वो किसानों पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी मुकाबले हुस्न पर दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में फसल की खरीदारी में कभी इतनी ताख़ीर नहीं हुई। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर हुकूमत करने से कासिर हैं तो उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मुज़दलिफ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम में हुजाज के इस्तक़बाल की तैयारियां जारी हैं।
सऊदी अरब में हज सीजन 2025 का आगाज हो चुका है। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुनिया भर से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मस्जिद मशरुल हराम वाक़ मुज़दलिफ़ा में भी आज़मीन के इस्तक़बाल की तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि मस्जिद मशरुल हराम में आक़ा नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान दुआ की थी। इस मस्जिद में 12,000 से ज़ायद मुसल्लियों की गुंजाइश है। मस्जिद मशरुल हराम मिना में मस्जिद खैफ से 5 किलोमीटर और अरफात में मस्जिद निमरा से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ आज़मीन अरफात से वापसी के बाद रात गुजारते हैं। इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया है और वक्त के साथ साथ उसमें तोसी भी की गई है। आपको बता दें कि हज्जुल विदा के दूसरे दिन मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर रुके थे जहां आज मस्जिद मशरुल हराम वाक़ है, जो कोहे क़ज़ा के करीब है। आपको याद दिला दें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम अरफात से निकलो तो हरम में अल्लाह की हम्दो सना करो और हम्दो सना इस तरह से करो जैसा कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बस में सफ़र किया और सफ़र के दौरान ख़वातीन से महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को सिद्दीपेट जिले के दुडेड़ा टोल गेट से सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट तक करीमनगर डिपो की आरटीसी बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान वो ख़वातीन के साथ गपशप करते देखे गए। उन्होंने ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया और हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ भी तफ़सीलात हासिल की। रियासती वज़ीर ने आरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से आरटीसी मुलाज़मीन के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने हड़ताल से दस्तबरदार होने पर आरटीसी मुलाज़मीन का शुक्रिया भी अदा किया। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art fine flats and high-tech computer lab. अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने कहा कि वो उन लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ की, जिनकी वजह से उनकी बीवी बेवा होने से बच गई, जिनकी वजह से उनके बच्चे यतीम होने से बच गए, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी माँ को जवान बेटे को होने के दर्द से बचाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके कॉलेजेस में बेहतर तालीमी मुजाहरा करते हुए नुमाया निशानात लाने वाले तलबा की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हैदरा के ओहदेदारों ने गाजुला रामारम की 15 एकड़ अराजी पर से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। इनमें KL यूनिवर्सिटी की 5 एकड़ अराजी शामिल है। ये अराजी दरअसल राजू स्वहग्रह की अराजी थी जो 2009 में अलाट की गई थी, ताहम इस पर गैर मजाज कब्ज़ा किया गया था। अलावाजी गैर क़ानूनी तौर पर फेंसिंग और शेड्स की तामीर के सिलसिले में भी मुकामी अफराद की जानिब से हैदरा को शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद हैदरा ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। हिंदुस्तानी फ़ौज के कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ये हमला पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान की तरफ से एक मौसर जवाब समझा जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर सरगर्म बैरिस्टर ओवैसी ने उर्दू में किए गए ट्वीट में कहा, मैं हमारी दिफाई अफवाज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हदफी हमलों का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर देना चाहिए।
जमात इस्लामी हिंद ने दहशत गर्दी को इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म और एक संगीन खतरा करार देते हुए इसके मुकम्मल खात्मे को मुल्क और अवाम की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ की गई कार्रवाई को मुल्क भर के तमाम मज़ाहिब और बरादरियों की तरफ से मुकम्मल तायद हासिल है। हिंदुस्तान के अवाम अपनी अफवाज के साथ मुत्तहद होकर खड़े हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस नाजुक मौके पर पूरी कौम को मुत्तहद होकर इस चैलेंज का सामना करना ज़रूरी है। कमिश्नर बल्दिया आर.वी. कर्नन ने संतोष नगर सर्कल के गौलीपुरा में वाक़े सलाटर हाउस का मुआयना किया। इस मौके पर बाज़ अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता 10 बरसों से ये ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, इसका फौरी तौर पर आगाज़ किया जाना चाहिए। कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी कि इस मुकाम पर सरकारी अराज़ी पर गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने के लिए कंपाउंड वाल की तामीर की जाए। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि इस जगह पर बस्ती दवाखाना या आंगनवाड़ी इमारत की तामीर की तजावीज़ पेश की जाए। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की 2 सीनियर खातून ओहदेदारों विंग कमांडर व्योमकी सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीबीआई की नामपल्ली खुसूसी अदालत ने ओबलापुरम कानकनी केस में तकरीबन 14 साल बाद अपना क़तई फैसला सुना दिया, जिसमें 4 अफराद को मुजरिम करार दिया गया और 2 अफराद को इस केस से बरी कर दिया गया, जिनमें साबिक़ वज़ीर कानकनी सबिता इंद्रा रेड्डी भी शामिल हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज़ कृपानंद भी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने 4 मुलज़िमीन साबिक़ वज़ीर व मौजूदा रुकन असम्बली कर्नाटक जी जनार्दन रेड्डी, उनके ब्रदर निस्बती और मैनेजिंग डायरेक्टर ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन श्रीनिवास रेड्डी और वीडी राजगोपाल रेड्डी जो उस वक्त के डायरेक्टर महकमे कानकनी थे, के अलावा महफूज अली खान पर्सनल असिस्टेंट जनार्दन रेड्डी को सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुजरिमीन पर फीकस 10,000 रुपये का भी जुर्माना आयद किया है। कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के एमएलए डॉक्टर संजय ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैं हज़ारों जानें बचाने वाला डॉक्टर हूँ, घटिया सियासत में शामिल नहीं होगा। सियासत आवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए, कमीशन के लिए नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा, दूसरों के ख़िलाफ़ बुरा नहीं बोलूँगा। मुझे सिर्फ अपनी बहनों किसान भाइयों की भलाई चाहिए। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि हुक्मरान जमात में शामिल होने की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि मुझे ख़रीदने के लिए उनके बाप दादा को उतरना पड़ेगा। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं का हैदराबाद में रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें एडिशन में शिरकत के लिए आलमी शोहरत याफ्ता हसीनाएँ हैदराबाद पहुँच गई हैं। इनमें हंगरी, पोलैंड और दीगर ममालिक की हसीनाएँ शामिल हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो पैगाम जारी किया जो गुज़िश्ता रोज़ आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ख़लाई तहक़ीक़ के लिए रिकॉर्ड किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खला सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि तजस्सुस, हौसले और इज्तिमाई तरक्की का ऐलान है। हिंदुस्तान का खलाई सफ़र ऐसे जज्बे की अक्कासी करता है। 1963 में एक छोटे रॉकेट की लॉन्चिंग से लेकर चांद के जनूबी कुतुब के करीब उतरने वाला पहला मुल्क बनने तक का सफ़र काबिल फ़ख्र रहा है। हमारे रॉकेट सिर्फ पेलोड ही नहीं बल्कि 1.4 अरब हिंदुस्तानियों के ख्वाब भी ले जाते हैं। हिंदुस्तान के खलाई माहिरीन ने साइंसी मैदान में कई अहम संग मेल अबूर किए हैं। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर GHMC आर.वी. कर्नन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने SC/ST सब प्लान के तहत फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त की, ख़ास तौर पर कालिदासपुरा, लक्ष्मी नगर और दीगर इलाक़ों के लिए इस प्लान की मंजूरी के तहत फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ों में सड़कों और NP2 पाइपलाइंस की मंजूरी का भी मसला उठाया। उन्होंने शाह हतीम तालाब की सफाई पर भी जोर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र हिंदुस्तानी फ़ौज की कामयाबी के लिए दबीरपुरा में वाक़ एक मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की जानिब से की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफ़ी संगीन हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दहाइयों से तनाज़ात में उलझे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई नहीं चाहता कि दो ताकतवर ममालिक सड़कों पर आकर एक दूसरे से टकराएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की नई सुबह जम्मू और कश्मीर की सरहदी बस्तियों से मनाजिर सामने आए। हिंदुस्तान ने कल रात के बाद नई सुबह का आगाज़ किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था। जम्मू कश्मीर की सरहदी बस्तियों से मिलने वाले मनाजिर में सिक्योरिटी की सूरत हाल नुमाया तौर पर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी फ़ौज के कल शब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक मकबूजा कश्मीर के बहावलपुर के दवाखानों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और इन दवाखानों में इमरजेंसी की सूरत हाल देखी गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।